Then we have committed the files. Um, Now we'll see how to see the logs. Okay. We'll see how to see the logs. So the status, we have seen how how many files are there in the Git repository. Then we have seen whether the status shows that whether those files are committed or not. Okay. Then we can see the log using git log command. It will show you the logs of every file you have created, when you have created, the date, time, okay, who committed the file, when you have updated particular file. Those logs are given by this git log command. So here, see, in previous practical, what we have done, we have created files within our, we have created a repository, then we have created files within our repository, we have updated those files. So every log is there within here. When you want to see these details, you can go to git log. So there is git log with option online also, on one line. So if you uh, want to see these logs in only one line, so one line option is also there. When you say git one line, it will give these logs of each transaction you have done in one line. The first file is this one, and this description is given in one line. If you want to see the logs of particular file, you can also do that by using git log one line. Suppose project 2 file is there, docx file is there. If I want to see the logs of project 2 file, you can do this by mentioning the file name. See here. Okay, so here it shows the logs of project 2 file. So next is you can also uh, find the log by using ID. Okay. So you can find that log by using ID also. You have to provide your ID over here to find the logs. Okay. So suppose I want to find the log of this file 172. So you can provide this ID over here. That, sorry. So by providing the ID of the file, you can also find out the logs. Okay. So ID is given over here for each of the update you, or each of the change you make in particular file. Whenever you create new file, the ID is given to each of the change you are doing in your repository. So by using that ID, you can find out the logs. Okay. So now we see this is what we have done. It is in local directory. This is in local repository on your machine.
ठीक है। तो ये जो आपकी मशीन पे है वो लोकल रिपॉजिटरी रहता है। इफ यू वांट टू पुश इट टू रिमोट रिपॉजिटरी में क्यों डालना चाहिए कोई भी काम? अगर ये आपके रिपॉजिटरी में है तो कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है ये आपकी रिपॉजिटरी में से एक्सेस नहीं करता, सो इफ यू कर सकता। सो व्हाट यू वांट इज, सपोज यू वांट टू गिव द एक्सेस ऑफ दिस रिमोटली, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रिपॉजिटरी में डालना है, रिमोट रिपॉजिटरी में डालना है, कैसे? ये भी हम लोग कर सकते हैं। रिमोट में से लोकल में कैसे लाना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब हमने जो गिटहब में अपना अकाउंट बनाया है वो होता है आपका रिमोट रिपॉजिटरी। अभी जो आप कर रहे हैं वो होता है आपका लोकल लोकल रिपॉजिटरी। अगर आपको आपके लोकल रिपॉजिटरी में जो फाइल्स बनाए हैं वो आपको गिटहब में डालने हैं, या फिर गिटहब में अगर कोई फाइल बनाया है वो आपको आपकी लोकल रिपोजिटरी में डालना है, तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी यू विल सी दैट। तो मतलब यहाँ पे मैंने किया है, मेरा आई एम अ डेवलपर सपोज इन वन कंपनी, सो आई हैव डेवलप्ड वन फाइल। अब नाउ आई वांट टू टेस्ट दैट फाइल, समवन नीड्स टू टेस्ट दैट फाइल। सो टेस्टर कहाँ से लेगा? मेरे लोकल रिपोजिटरी में से तो वो फाइल नहीं ले सकता। सो आई हैव टू अपलोड दिस फाइल टू द रिमोट रिपोजिटरी, जहां से वो टेस्टर वो फाइल रिमोट रिपोजिटरी पे उसका, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू लॉग इन टू योर गिटहब अकाउंट। अगर आपने लॉग इन किया है पहले से ही तो फाइन, जस्ट गो टू योर गिटहब अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये मेरा ये है डेवऑप्स ट्रैक करके एक रिपॉजिटरी है। तो यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा ये मेन करके, ठीक है। तो ये आप भी अभी जो कुछ भी फाइल्स बना रहे हैं ये अपने आप मेन में जा रहे हैं। मतलब मतलब मेन मॉड्यूल है आपका, सपोज उसके फाइल्स है तो वो मेन मॉड्यूल में जाएंगे। अभी क्या है, सपोज मुझे ये जो फाइल्स मैंने मेन मॉड्यूल में बनाए हैं उसको कुछ तो अपडेट करना है, नया वर्जन बनाना है। सपोज मेरा वर्जन है 3.7, मेरा अपना वर्जन कोई तो सॉफ्टवेयर का है जो मेन में है, उसका वो वर्जन है 3.7। अभी मुझे 4.0 एक वर्जन बनाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ का जो ओरिजिनल जो मेरा सब डेटा है उसको मुझे कुछ अफेक्ट नहीं होने देना है। तो मैं एक मेन का एक नया ब्रांच बना सकती हूँ जिसमें मैं वो कोड अपडेट करूंगी। तो इट विल नॉट अफेक्ट with the code which is already there in the main branch। तो इसके लिए ब्रांचिंग सिस्टम होता है। ये वर्जन मेंटेन करते करते आपको अगर चेंजेस करने हैं और प्रीवियस वर्जन वैसे ही सिक्योर रखने हैं या फिर वर्किंग कंडीशन में रखने हैं, इन दैट केस यू कैन यूज दैट ब्रांचिंग ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेन ब्रांच है, यहाँ पे मैं अपना नया ब्रांच क्रिएट कर सकती हूँ। यू कैन गिव एनी नेम ओवर हियर, सपोज न्यू ब्रांच करके मैं एक नेम दे सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये नया ब्रांच मैं क्रिएट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यू न्यू ब्रांच क्रिएट हुआ। आई कैन गो बैक टू मेन ब्रांच। मेन डिफॉल्ट रहता है आपका। ठीक है, आपको समझ में आया अभी? तो ये होता है मेन ब्रांच। और आपको अगर मेन ब्रांच का कोड कुछ चेंज करना है लेकिन मेन ब्रांच का कोड इंटैक्ट रखना है और नया कोड बनाना है, इन दैट केस यू कैन क्रिएट योर न्यू ब्रांच टू द मेन। तो यहाँ पे ये मेन ब्रांच में मेरा एक टेस्ट करके एक फाइल है सपोज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया मैंने जो कुछ भी बताया अभी? बहुत है इससे आगे।
तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आया? यू अंडरस्टूड ये ब्रांच क्या होता है, ब्रांच का यूज कैसे होता है बाद में वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ब्रांच क्या होता है ये यहाँ पे पता लगना चाहिए आपको। यू अंडरस्टूड दिस वन? आप अपने अकाउंट में जाओ, आपकी रिपोजिटरी में जाओ। आपकी पहले आप जो भी रिपोजिटरी बनाते हो वो मेन ब्रांच में ही जाता है, डिफॉल्ट ब्रांच रहता है मेन। आपको अगर नया रिपोजिटरी किसी ब्रांच में, नए ब्रांच में बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिपोजिटरी बनाते वक्त ब्रांच सिलेक्ट करना होता है, मेन ब्रांच। और अगर इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी हियर अगेन, इट विल आस्क यू, इट विल आस्क मी टू सिलेक्ट अ ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? एम आई ऑडिबल? समझ में आया कि नहीं आपको? ये इजी है, लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर दिस फ्लो। आपको एक फ्लो याद रखना पड़ेगा हर टाइम। ठीक है, अभी ये हमारा गिटहब का हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट करके एक जो फाइल है, मुझे वो अब मेरी लोकल रिपॉजिटरी में लानी है। आई वांट टू bring that test file into my local repository. So what I can do is I have to go back to git, git bash में जाना पड़ेगा। So go back to git bash। So ये करने के लिए I can use git remote add command। So before that what I have to do is, ये जो आपका रिमोट रिपॉजिटरी है उसका कोड आपको कॉपी करना पड़ता है। तो ये मेरा डेवऑप्स प्रैक करके ये जो रिमोट रिपॉजिटरी है, मैं उसके कोड में जाऊंगी। आई विल गो टू द कोड। यहाँ पे एक लिंक है, वो लिंक आई विल से कॉपी, इट विल बी कॉपीड। यहाँ पे वो लिंक के सामने एक बटन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट बटन एंड योर लिंक विल बी कॉपीड। ओके, so go back to git bash। Now what I will say, git remote add origin, और जो मैंने अभी लिंक कॉपी किया है वो पेस्ट करना है मुझे यहाँ पे। गिट रिमोट रिपॉजिटरी से मुझे ये ओरिजिन, ये जो डेवऑप्स प्रैक्टिकल में से फाइल है वो कॉपी करने हैं सारे। सो आई हैव टू गिव द ओरिजिन। ओरिजिन के लिए मुझे यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। सो आई विल गिव दैट लिंक, आई विल से एंटर। तो रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है। सो आई विल से नाउ हिट रिमोट शो ओरिजिन, शो ओरिजिन। सो यहाँ से मैंने, मेरा स्वाति पवार जो अकाउंट है वहां से मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है डेटा। सो सेकेंड टेस्ट प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है?
So you can do this. Now you can use a pull command to pull all the files from your remote repository to the local repository. So what I will do, I will say pull, git pull, sorry, git pull origin. ओरिजिन क्या है, मेन ब्रांच में है सपोज, यहाँ पे ब्रांच कौन सा है वो दाखिल करना है, ये मेन ब्रांच है, तो यहाँ से मुझे पुल करने हैं फाइल्स, सो आई विल से मेन, ओरिजिन मेन। ठीक है, तो मैंने आई हैव पुल्ड द डेटा फ्रॉम द मेन ब्रांच of my GitHub account to the local directory. We'll see whether it has been done or not. It is already done. We'll do it here again. Bash. Git remote. Okay. So मेरा यहाँ पे मेन ब्रांच में जो भी टेस्ट फाइल्स है वो मेरे अभी लोकल डायरेक्टरी में आए हैं कि नहीं, दैट वी विल सी। सी यहाँ पे आपको दिखेगा ये टेस्ट फाइल जो है, यहाँ पे पहले 3 ही फाइल थे, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ये जो टेस्ट फाइल है, हाय एवरीवन, हाय दिस इज सेकंड लाइन, ये जो फाइल है ये है इसमें, यहाँ पे देखो, हाय एवरीवन, हाय दिस इज सेकंड लाइन। ये जो टेस्ट फाइल है वो मैंने क्या किया, अभी पुल करके मेरे गिटहब अकाउंट में से मैंने लोकल रिपोजिटरी में लाया है। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूंगी, गिटहब में से वो निकाल के फाइल लोकल रिपोजिटरी में डालूंगी, उसमें चेंजेस करूंगी और बाद में फिर देन आई विल पुश बैक। ये इसको बोलते हैं पुलिंग, ये पुल करते हैं हम लोग डेटा चेंज करके, देन वी विल पुश दैट डेटा, पुश बैक दैट डेटा टू द रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में जब हम लोग डेटा लाते हैं तो वी विल से इट इज से, इसको बोलते हैं पुलिंग, डेटा पुल किया हमने। और जब हम लोकल रिपोजिटरी में से रिमोट रिपोजिटरी में डेटा डालते हैं तो उसको बोलते हैं पुशिंग, पुश करते हैं हम लोग डेटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर कंफ्यूजन हुआ है तो आई विल डू इट अगेन। ठीक है, सपोज आई विल शो यू मैंने क्या किया। मेरा ये जो गिटहब का अकाउंट है, यहाँ पे मैं गई, टेस्ट रिपोजिटरी में गई। ठीक है, टेस्ट रिपोजिटरी में
यहाँ पे मैंने जो कोड है वहां पे क्लिक किया, यहाँ से ये लिंक कॉपी किया। ओके, नाउ सपोज यहाँ पे एक मैंने मेरा एक रिपोजिटरी बनाया, टेस्ट रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने गिट बैश ओपन किया, क्लोज करती हूँ टेम्पररी, आई विल क्लोज। ओके, यहाँ पे मुझे ये जो टेस्ट रिपोजिटरी है, यहाँ पे मुझे वहां से जो मेरा गिटहब का अकाउंट है वहां से टेस्ट जो डॉक्यूमेंट है वो इंपोर्ट करना है या फिर पुल करना है। देन व्हाट आई विल से गेट रिमोट एड ओरिजिन, जो मैंने लिंक कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी। कहाँ से मुझे लाना है? यहाँ से। तो आई हैव टू इनिशियलाइज द गिट इनिट, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। देन आई विल से गेट रिमोट शो ओरिजिन, शो ओरिजिन। तो यहाँ से मैंने वो टेस्ट जो है, मेरा जो टेस्ट लोकल फोल्डर है वहां पे डेटा आया है क्या, देखते हैं हम लोग। ओरिजिन टेस्ट किया, देन वी विल पुल, गेट पुल ओरिजिन मेन। तो यहाँ पे टेस्ट में, यहाँ पे जो टेस्ट फाइल था रिमोट रिपोजिटरी का, वो लोकल रिपोजिटरी में आया। तो सिर्फ तीन ही कमांड है पुल करने के लिए। पहले आपको गिट रिमोट एड ओरिजिन कमांड यूज करना पड़ेगा, बाद में आपको शो ओरिजिन, मतलब करेक्ट ओरिजिन से लिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, एंड एट द एंड यू हैव टू पुल द डेटा। यहाँ पे ओरिजिन के बाद हम लोग जो ये मेन लिख रहे हैं, ये जो है वो ब्रांच है। तो यहाँ पे आपका ब्रांच का इंपॉर्टेंस रहता है। अगर मैंने वो न्यू ब्रांच करके कोई ब्रांच बनाया है, उसका डेटा मुझे फेच करना है, तो आई हैव टू सिंपली स्पेसिफाई द ब्रांच नेम ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ ब्रांच नेम स्पेसिफाई करना। ओरिजिन, आपके फाइल का ओरिजिन क्या है? ब्रांच नेम। वो ब्रांच नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है आपको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि पुल कैसे करना है डेटा रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में। यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया सबको? अब ये हम लोगों को देखना है कि पुश कैसे करना है डेटा। हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी से हाउ टू पुश द डेटा। सो हम लोग सिंपली एक कमांड टाइप करते हैं यहाँ पे, गिट पुश। तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, यू विल सी वन एरर हियर। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग डेटा, because you need to have some special privileges to push the data.
मतलब ऐसे ही उठकर मैं मेरा डेटा रिमोट रिपॉजिटरी पे पुश नहीं कर सकती। सो आई नीड टू गेट सम स्पेशल प्रिविलेजेस। मुझे इंक्रिप्शन करना पड़ेगा। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कब करना पड़ेगा? यू माइट हैव सीन दिस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। मुझे ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है पहले। पुश करने से पहले, डेटा पुश करने से पहले यू नीड टू डू सम ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो वो करने के लिए और या फिर प्रिविलेज लेने के लिए एक कमांड आपको लिखना पड़ेगा। वो कमांड है SSH हाइफन की जेन, मतलब जनरेट की, हाइफन टी RSA, ये एनक्रिप्शन RSA एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हाइफन बी O094, you have to encrypt it, हाइफन कैपिटल C। आपको कहाँ पे किस रिमोट अकाउंट से आपको डेटा पुश करना है, किस रिमोट अकाउंट पे आपको डेटा पुश करना है, वो अकाउंट का ईमेल आईडी आपको देना पड़ता है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है swati.povar@fmt। हेलो मैम। मैम एक डाउट है। मैम जो हाँ गेट बोलो। गिट पुश लिखे थे आपने सेट आप स्ट्रिंग करके, वो आप स्ट्रिंग से डायरेक्ट पुल ही सिर्फ कर सकते हैं ना, पुश नहीं कर सकते ना? अभी पहले बताया हाँ वो। मैम, गिट वो सेट आप स्ट्रिंग है ना, आप स्ट्रिंग वहां से सिर्फ पुल ही किया जा सकता है ना, पुश नहीं किया जा सकता है ना? मुझे कौन से स्ट्रिंग कौन सा, मुझे मुझे समझ में नहीं मैम जो आया। मैं सेट स्ट्रिंग का आप क्या स्ट्रीम बताऊं करते आपको? हैं ना हम, सेट आप स्ट्रीम। अपस्ट्रिंग? हाँ मैम, ऊपर है ना सेट आप स्ट्रीम। अपस्ट्रीम वो ब्रांच है। मास्टर, ब्रांच मास्टर, ये जो ब्रांचेस है, ये आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये एरर है, यहाँ पे मत देखो। यहाँ पे नीचे कमांड है, वो पुल का नहीं है। अभी वी हैव स्टार्टेड विथ पुश, पुल का हो गया हमारा। मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा, मतलब डाउट ही समझ में नहीं आया मेरा। मैम मतलब जो ये सेट जो स्ट्रीम मास्टर है करते हैं हम, यहाँ पे, ये तो देखो, आप स्ट्रीम अभी सिर्फ मैंने पुल जो रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है ना आप स्ट्रीम से? पुल मास्टर कहीं से भी किसी भी ब्रांच से आप पुल और पुश कर सकते हो। मतलब ब्रांच मतलब क्या होता है, आप, मैंने बताया ना ब्रांच क्या होता है, कि आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आप एक नया ब्रांच सेटअप कर सकते हो। तो किसी भी ब्रांच से आप पुल और पुश कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मेन ब्रांच ही होना चाहिए या फिर मास्टर ब्रांच होना चाहिए। यहाँ पे आपका लोकल रिपोजिटरी का जो है, वो जो ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच है। रिमोट रिपोजिटरी का जो है वो है आपका मेन ब्रांच। आप मेन ब्रांच में भी सब ब्रांचेस बना सकते हो, आप मास्टर ब्रांच में भी सब ब्रांचेस बना सकते हो। कहीं से भी डेटा पुल पुश आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना है मुझे मेरे रिपॉजिटरी में, मतलब रिमोट रिपॉजिटरी में डेटा पुश करना है। तो मेरा रिमोट रिपॉजिटरी कहाँ है? तो ये अकाउंट पे है, मेरा गिटहब का अकाउंट। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, जो गिटहब से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो राइट डाउन द, आपको अगर दिख रहा है ये कमांड, अच्छे से दिख रहा है थिंक सो, तो ये कमांड अच्छे से लिख लो। यहाँ पे कैपिटल, इट इज केस सेंसिटिव, इट इज केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे कैपिटल C है। अगर स्मॉल c दोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पब RAC की पेयर जनरेट होगा। तो वो की पेयर जनरेट हुआ है, तो आपको वो कहीं तो सेव करना पड़ेगा। तो मैं एक गिट की करके एक फाइल बनाती हूँ यहाँ पे। एंटर द फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। तो यहाँ पे एक गिट की करके एक फाइल बनाना पड़ेगा आपको, वहां पे वो सेव होगा। पासवर्ड दे सकते हो आप। पासवर्ड क्यों रहता है? ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला फाइल है आपका।
तो ऑब्वियसली व्हाट यू वांट इज यू वांट टू सिक्योर योर एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की। तो इसके लिए तो यहाँ पे मुझे नहीं देना है, आई विल नॉट गिव द पासवर्ड। ओके, आप तो ये की का एक रैंडम इमेज जनरेट होगा आपका, ये आपका की है, मतलब यूजिंग आरएसए एल्गोरिथम योर की इज जनरेटेड ओवर हियर। तो आपको देखना है आपका की, तो आप आपके फोल्डर में जाओ, यहाँ पे गिट की का ये जनरेट होगा, देखो आपके, आप देख सकते हो गिट की। तो गिट की ये जो पब्लिशर फाइल है उसको राइट क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर फाइल होगा वो, उसको ओपन विथ नोटपैड करो। तो ये जो है ये पूरा आपका की है, आरएसए का की, एसएसएस आरएसए की। ये देखो यहाँ पे की जनरेट हो गया। तो ये ऐसे ही रखो, आपको ये कॉपी करना है की, और वो क्या करना है वो बताती हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि की कैसे जनरेट करना है। आपको ये कमांड देना है SHS हाइपन कीजेन हाइपन टी RSA हाइफन B 4094 हाइफन कैपिटल C swati.povar@, मतलब आपका जो भी ईमेल आईडी जो आपके गिटहब से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दिस विल जनरेट अ की फॉर यू, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द फाइल इन विच यू वांट टू सेव द जनरेटेड की। वो फाइल को आप पासवर्ड भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, यू कैन गिव द पासवर्ड एट इट इज वेरी एक्चुअली ये क्रिटिकल जॉब होता है, जो कंपनी में करते हैं काम उनको, तो वो पासवर्ड देते हैं सिक्योरिटी के लिए, यू कैन गिव द पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वो की का फाइल जो रहता है वो पब्लिशर फाइल रहता है, उसको नोटपैड में आप ओपन करो, आपको दिखाई देगा वो की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है शायद। नाउ आपको क्या करना है, आपको आपकी रिपॉजिटरी में, ऑनलाइन जो रिपॉजिटरी है वहां पे जाना है, सॉरी ऑनलाइन जो आपका गिटहब अकाउंट है वहां पे जाना है। तो यहाँ पे आप जाओ, आपके प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाओ, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आपको SSH एंड GPG कीज दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करो। SSH की में आपको न्यू की SSH की करके एक ऑप्शन दिखेगा, एक बटन दिखेगा, क्लिक ऑन दैट। क्या करना है फिर से मैं बताती हूँ, गो टू योर प्रोफाइल, प्रोफाइल यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में एक प्रोफाइल का आपका आइकॉन रहता है, उसको क्लिक करो, गो टू सेटिंग्स, आपके प्रोफाइल के सेटिंग में जाएगा आप। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड SSH एंड GPG कीज, इस यहाँ पे आप क्लिक करोगे। SSH की के सामने आपको न्यू SSH की करके एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं सपोज टाइटल देती हूँ मेरे की को ये, और यहाँ पे मैं मेरा जो की है यहाँ का जो की जनरेट हुआ है वो मुझे कॉपी करना है, और यहाँ पे आके वो की पेस्ट करना है। देन आई विल से ऐड SSH की। आपको मैंने ऑलरेडी आई एम ऑथेंटिकेटेड, तो आपको ये ऑथेंटिकेशन पूछेगा, तो फिर से आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा आपके अकाउंट का यहाँ पे। तो ये मेरा की यहाँ पे सेव हो गया। I will tell you again, you just have to go to, पहले आपको की जनरेट करना है। की जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है,
आपको एक कमांड टाइप करना है, SSH हाइफन कीजेन स्पेस हाइफन टी स्पेस RSA स्पेस हाइफन बी स्पेस 4094 स्पेस हाइफन सी स्पेस आपका रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर इन फॉर योर गिटहब। ये देने के बाद आपका की जनरेट होगा, ऑथेंटिकेशन की जनरेट होगा। वो आपको एक फाइल में सेव करना है और वहां से कॉपी करना है। अगर आपने कॉपी किया है तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल के सेटिंग्स में जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एक ऑप्शन SSH एंड GPG कीज वाला, वो उसको आपको क्लिक करना है और आप जाओगे ये पेज पे, SSH की के पेज पे। यहाँ पे आपको न्यू SSH की पे क्लिक करना है और वहां पे आपने जो की लिया है उसके लिए टाइटल देना है और वो की वहां पे सेव करना है, कॉपी पेस्ट करके सेव करना है, सॉरी पेस्ट करके सेव करना है। ठीक है, तो ये आपका ऑथेंटिकेशन हो गया यहाँ तक। ओके, साइमल्टेनियसली आप करते जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, बाद में आपको ध्यान में नहीं रहने वाला ये सब। So simultaneously when I am telling you, try it on your machine. So this is the best way to do your DevOps practical. तो यहाँ पे मैंने SSH की मेरा ऐड कर दिया, कौन सा है, यहाँ पे नया ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मुझे पुश करना है, यहाँ पे जाऊंगी मैं, क्लियर। तो पुश करने से पहले मैं अपने रिपोजिटरी का स्टेटस देखती हूँ। तो यहाँ पे दो फाइल्स जो है वो कमिटेड नहीं है, गिट की एंड गिट की पब्लिकेशन, तो मुझे उनको स्टेजिंग एरिया में डाल के आई हैव टू कमिट दोज फाइल्स। सो व्हाट आई विल डू, git add git key dot pub। हो गया, ऐड हो गए आपके स्टेजिंग एरिया में। नाउ आई हैव टू कमिट दोज फाइल्स, सो आई विल से git, अदरवाइज आई विल जस्ट, स्टेजिंग एरिया में गए हैं तो आई विल जस्ट से I will push my data to the directory, git push hyphen u origin master। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए वो पूछता है आपके, एक्चुअली आई हैव डन दिस ऑथेंटिकेशन, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है शायद। आई हैव जस्ट डन दिस ऑथेंटिकेशन, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे आई विल टेल यू, यहाँ पे मेरे अकाउंट में जाके इसे टेस्ट में आपको दिख रहा है।
मैम की वाली फाइल बाय डिफॉल्ट इग्नोर में रहती है ना? क्या? की वाली फाइल बाय डिफॉल्ट इग्नोर में रहती की वाली फाइल? है ना, गिट इग्नोर में रहती है शायद। तुम्हारा नाम नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मुझे। इसलिए शायद वो अपडेट नहीं कर रहा है गिटहब, वो इग्नोर में है। नहीं, वो कमिट हो गया, सब डेटा ही कमिट हो गया। Your branch is up to date with origin master. Nothing to commit. Why it is not updated? Reference.
अप टिल दिस। ये लास्ट कमांड है, उसका क्या प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं बताती हूँ। इट विल टेक सम टाइम। शायद से वो आरएसी का की का रेफरेंस का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। सो आई विल डू इट एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। तब तक आप पुल करो डेटा। देन आपका पुशिंग के लिए आप वो आरएसी की वगैरह कैसे बनाना है वो देख के रखो, ठीक है। देन वी विल सी इन दिस, सी दिस इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। पुश कैसे करना है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक आपका हो गया है तो ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल यहाँ से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोग पहले जब गिट स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले नई नई रिपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन यू हैव टू create your files. You can check the git status of your git repository by using git status. आपने जो फाइल्स बनाए हैं आपको वो स्टेजिंग एरिया में डालने पड़ते हैं। आपको बाद में स्टेजिंग एरिया के बाद डालने के बाद में वो आपको कमिट करने पड़ते हैं। यू हैव टू कमिट दोज फाइल्स, ठीक है। तो बाद में ये टुडेज प्रैक्टिकल वी हैव सीन हाउ टू सी द गिट लॉग्स। मतलब आपने जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए हैं आपके गिट रिपॉजिटरी में, यू कैन सी ऑल द ट्रांजैक्शंस। ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज गिवन यूनिक आईडी। Then we have seen how to pull data from remote repository to your local repository. For pushing data from your local repository to remote repository, you have to do authentication. इसके लिए आपको एक की जनरेट करना पड़ता है। उसका जो पूरा कमांड है वो मैंने दिया है। देन आपको वो की आपके प्रोफाइल में जाके सेव करना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ एक कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, गिट पुश कमांड, ठीक है। तो उसके बाद में आपके जो लोकल डायरेक्टरी के फाइल्स है वो सारे रिमोट डायरेक्टरी में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे हैं दैट आई हैव टू सी। आई विल टेक द अटेंडेंस, देन यू कैन गिव।